So the question here is, in a MOS capacitor, flat band voltage depends upon option A, work function of metal, option B, work function of semiconductor, that is called substrate, option C, oxide semiconductor interface charge, option D, capacitance offered by the oxide layer. So ये हमारा MOS capacitor का basic structure है. So this is the semiconductor which is called as a substrate, और इसके नीचे का टर्मिनल को बोलते हैं बॉडी टर्मिनल, और ऊपर में हमारा ये ऑक्साइड लेयर है, और इसके ऊपर में हमारा ऑक्साइड लेयर के ऊपर में मेटल का हमारा लेयर होता है. तो यहाँ पे ये हमारा मेटल का लेयर है, और ये हमारा गेट का टर्मिनल है, और ये हमारा ऑक्साइड लेयर का थिकनेस है TOX. तो यहाँ पर फ्लैट बैंड वोल्टेज के बारे में पूछा है. तो फ्लैट बैंड वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VFB इज कॉल्ड हियर फ्लैट बैंड वोल्टेज, and this is given here as a phi ms minus qy by cox. So phi ms क्या होता है? तो phi ms is the work function difference of metal and semiconductor. So this phi ms can be written as here phi m minus phi s, where this phi m is the work function for the metal and phi s is the work function for the semiconductor. So phi ms is called the work function difference of metal and semiconductor. तो यहाँ पर जैसे कि पूछा है फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे हमारा डिपेंड करता है, जो ये phi m से हमको दिख रहा है. उसके बाद फिर वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज कॉल्ड एज ए सबस्ट्रेट. तो यहाँ पे phi s भी हमारा टर्म है, phi m भी हमारा टर्म है. तो वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर पे भी डिपेंड करता है फ्लैट बैंड वोल्टेज. उसके बाद ये QI होता है हमारा, यहाँ पर सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड लेयर के बीच का जो इंटरफेस चार्ज होता है, ये हमारा यहाँ पर इंटरफेसिंग पॉइंट है. तो इस इंटरफेसिंग पार्ट पे जो हमारा चार्ज होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस चार्ज. सो दैट इज डिनोटेड हियर बाय दिस QI. तो यहाँ पर फ्लैट बैंड वोल्टेज हमारा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस चार्ज पे भी डिपेंड करता है. और COX क्या है? सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय दिस ऑक्साइड लेयर. तो यहाँ पर मेटल प्लेट और सेमीकंडक्टर के बीच में ये ऑक्साइड लेयर हमारा इंसुलेटर की तरह काम करता है. So this is offering the capacitance offered per unit area by the oxide layer. तो यहाँ पर ये इसके हिसाब से ऑप्शन डी का स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा, कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय द ऑक्साइड लेयर. तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, सो दिस इज MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन. So that these all the four options as like work function of metal in option A, work function of semiconductor or substrate in option B, in option C oxide semiconductor interface charge, option D capacitance offered by the oxide layer. So चारों ऑप्शन हमारे सही हैं. So the final answer for this question is option A, B, C and D. And by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, in a MOS capacitor, the ratio of maximum capacitance to the minimum capacitance is 4, and the ratio of the permittivities of the semiconductor to the oxide layer, that is epsilon S by epsilon OX is equal to 3 full stop. The ratio of maximum depletion width to the oxide thickness of this MOS capacitor is filling the blanks full stop. So now we will see the detail of the solution. So as per the question given data here, a C max by C min is equal to 4 and their permittivity as a epsilon S by epsilon OX is equal to 3. हमको निकालना क्या है? Maximum depletion width to the oxide thickness ratio. So this XD max is called here maximum depletion width and TOX is called here as the oxide thickness. और हम लोग जानते हैं कि MOS कैपेसिटर में maximum capacitance is offered by the oxide layer, which is given here as a C max is equal to COX, whose formula is given in this equation number 3, epsilon OX by TOX, which is having that farad per centimeter, or we can say that this is denoting here as a capacitance per unit area. और यहाँ पर मिनिमम कैपेसिटेंस क्या होता है? तो मिनिमम कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय दिस MOS कैपेसिटर इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस COX एंड CD मीन. सो जब MOS कैपेसिटर हमारा इन्वर्सन रिजाई में काम करता है तो उस समय में हमारा COX और CD मीन का जो इक्विवेलेंट होता है वो हमारा C मीन देता है. CD मीन क्या होता है? तो CD मीन हमारा ये मिनिमम कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय द MOS कैपेसिटर इन देयर सेमीकंडक्टर पार्ट wherever it is forming the depletion region.
तो हम जानते हैं कि जब हमारा मॉस कैपेसिटर इन्वर्सन रीजन में काम करता है तो उसमें हमें डिप्लीशन रीजन मैक्सिमम होता है, जो कि यहाँ पे डिनोट किया गया है XD मैक्स से। तो जब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन हमारा मैक्सिमम होगा तो उस समय में डिप्लीशन रीजन के द्वारा ऑफर जो कैपेसिटेंस होगा वो हमारा मिनिमम होगा, सो दैट इज कॉल्ड हियर एज ए CD मीन। But in inversion regime, whenever we are finding their equivalent capacitance, then by that time it is equivalent of CD mean and COX। इसका मतलब क्या है कि inversion regime में जब हम लोग equivalent capacitance निकालते हैं तो जो हमारा depletion region के द्वारा कैपेसिटर फॉर्म होता है and the capacitor formed by this oxide layer both is treated here in series। दोनों आपको सीरीज में दिखेगा और हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होता है। सो दिस इज C मीन इज इक्वल टू COX इंटू CD मीन डिवाइड बाई COX प्लस CD मीन। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 को यूज़ करके हमको निकालना है XD मैक्स बाई TOX का रेशियो। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं दिस C max by C mean, we can write it here, this C max by C mean। so यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से C max क्या है, so this is here COX डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 से C mean क्या है, so this is COX into CD mean डिवाइड बाई COX प्लस CD mean। तो यहाँ से ये COX और COX हमारा कैंसिल हो जाएगा। So we can write it here as a CD mean plus COX divide by CD mean। So इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 plus COX divide by CD mean। अब यहाँ से ये इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर। सो इक्वेशन नंबर 5 में COX का वैल्यू और CD मीन का एक्सप्रेशन, जो भी COX CD मीन है एप्सिलॉन OX बाई TOX एंड CD मीन इज इक्वल टू एप्सिलॉन S बाई XD मैक्स। सो इक्वेशन नंबर 3, 4 से हम लोग इस इक्वेशन नंबर 5 में यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा दिस C मैक्स बाई C मीन इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन OX डिवाइड बाई एप्सिलॉन S इंटू XD मैक्स डिवाइड बाई TOX। और यहाँ पर दिया हुआ है ये एप्सिलॉन S बाई एप्सिलॉन OX इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एप्सिलॉन S हमको क्या मिलेगा, सो दिस एप्सिलॉन S इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन OX। तो इसको जब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रेशियो में तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दिस एप्सिलॉन OX बाई एप्सिलॉन S इज हैविंग this epsilon OX by epsilon S is having the ratio as a 1 by 3। सो यहाँ पर एप्सिलॉन S बाई एप्सिलॉन OX हमारा दिया हुआ है 3, बट यहाँ पर एप्सिलॉन OX बाई एप्सिलॉन S का वैल्यू डालना है। तो आप एग्ज़ाम में ये सिली मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर डेटा ओवरलुक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है जल्दीबाजी में। तो आप इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पर ध्यान रखेंगे, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर C मैक्स CD मीन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है C मैक्स टू CD मीन, दिस रेशियो इज गिवन हियर एज ए 4। सो दिस इज 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो हमारा एप्सिलॉन OX बाई एप्सिलॉन S का रेशियो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू XD मैक्स डिवाइड बाई TOX। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दिस XD मैक्स बाई TOX का रेशियो आपको मिलेगा। सो ये 1 हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा तो 4 माइनस 1 इट विल बिकम हियर 3 और ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो डैट XD मैक्स बाई TOX रेशियो विल बिकम हियर एज ए 9। दिस रेशियो विल बिकम हियर एज ए 9 टू गेट दिस रेशियो ऑफ C मैक्स बाई C मीन टू 4। सो डैट जैसा कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन में मेंशन किया दिस इज NET टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सो वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ XD मैक्स बाई TOX। तो यहाँ पर रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमको मिल गया यहाँ पर 9। हमको यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू फिट करना है, सो डैट द न्यूमेरिकल वैल्यूज इज 9 हेयर एंड बाय दिस वे I can say that final answer for this question is 9. So by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the energy band diagram of an ideal MOS capacitor based on silicon substrate shown in below figure full stop. If the gate voltage Vg applied is positive, then which of the following statements are correct? Question mark. Option A, substrate is p-type.
ऑप्शन बी सबस्ट्रेट इज एन टाइप, ऑप्शन सी MOS capacitor works in inversion regime, option D MOS capacitor works in accumulation regime. So this is the energy band diagram given here. Now we will see their detailed analysis and solution. So यहाँ पर ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम दिया हुआ है फॉर दिस MOS कैपेसिटर और इसमें हमको फाइंड आउट करना है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिजाइम ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमको ये देखेंगे अगर सेमीकंडक्टर साइड में दियर एनर्जी बैंड डायग्राम तो आपको दिखेगा कि फर्मी एनर्जी in this semiconductor side is very near to this conduction band, so that this is indicating that the type of the semiconductor used here is as a n type. तो यहाँ पर हमको मिल गया substrate of this MOS capacitor is n type as per this energy band diagram shown in this semiconductor side. तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है रिजाइम ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर जैसा कि मेंशन है Vg अप्लाइड इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर जब गेट वोल्टेज आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेटल के लेयर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर इस मेटल साइड में जो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू नो बायसिंग जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा मेटल का उसके रिस्पेक्ट में ये नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, तो ये नीचे जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। तो उसके कारण क्या होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप हमारा जनरेट होगा बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर ऑन दिस ऑक्साइड लेयर। तो यहाँ पर ये जो ऑक्साइड लेयर है तो इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव स्लोप आया और ये पॉजिटिव स्लोप हमारा इस एनर्जी बैंड डायग्राम में जो सेमीकंडक्टर के साइड का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसके हर एक लाइन पे हमारा पॉजिटिव स्लोप को क्रिएट करेगा। और एक बात कि यहाँ पर फर्मी एनर्जी लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये जो EF का लेयर है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्साइड इंसुलेटर होता है और फॉर द आइडियल ऑफ द ऑक्साइड फॉर द आइडियल ऑफ द इंसुलेटर नो करंट इज पासिंग थ्रू दिस। तो करंट पास नहीं होगा तो फर्मी एनर्जी लेवल में चेंजेस नहीं होगा। सो इन द MOS कैपेसिटर फर्मी एनर्जी लेवल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। तो एक तो ये एनालिसिस हो गया। अब दूसरा एनालिसिस इधर आइए। सो यहाँ पर ये तो मालूम पड़ गया कि हमारा एन टाइप का सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पर जब ये गेट वोल्टेज पॉजिटिव सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मेटल के लेयर पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसके कारण यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर का टॉप लेयर है सो एट दिस लेयर that negative charge carrier as electron is going to be accumulated more with respect to bulk of the body। क्योंकि इधर से हमारा क्या है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है और ये एन टाइप का सबस्ट्रेट हमको मालूम पड़ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन में रिपेल होगा तो नीचे से पुश आउट होगा और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल के लेयर पे तो ये भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर मेटल्स ये जो सेमीकंडक्टर का सरफेस है उसके लेयर पे आप देखेंगे कि the concentration of electron compared to bulk of the body will be very higher। तो ये इंडिकेट करता है कि MOS कैपेसिटर इज वर्किंग इनटू एक्यूमुलेशन रिजाइम। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि फर्मी एनर्जी लेवल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज और ये इक्वेशन आप पढ़े होंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NC एक्सपोनेंशियल अंडर ब्रैकेट माइनस और यहाँ पर EC माइनस EF भी ब्रैकेट में है डिवाइड बाई KT। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं दिस इज EC माइनस EF इज इक्वल टू KT इंटू LN अंडर ब्रैकेट NC बाई N0। ये NC क्या है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड और ये N0 क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एट गिवन टेम्परेचर दिस NC विल नॉट चेंज। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हमारा इस लेयर पे मतलब कि ये हमारा सेमीकंडक्टर के सरफेस पे टॉप सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रॉन का जो लेयर है वो बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये N0 का जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है और NC हमारा कांस्टेंट है। तो EC माइनस EF का जो डिस्टेंस है ये डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये रेशियो हमारा घटेगा और जब LN वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर रिलेटिवली टू दिस साइड एट दिस पॉइंट इट विल बी स्मॉलर। इसका मतलब क्या है, दिस EC इज ट्राइंग टू बिकम वेरी क्लोजर टू दिस EF इफ वी आर गोइंग फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच का ये डिफरेंस भी हमारा कम होते जाएगा क्योंकि इस रीजन में जो बल्क ऑफ द सेमीकंडक्टर के रीजन में
हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसके टॉप पे मतलब जो टॉप का लेयर है, जो टॉप का रीजन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन से हमको दिख रहा है कि EC और EF के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग जब बल्क से यहाँ पे टॉप की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे ये रिड्यूस होते जाएगा और इस तरीके का हमको स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन से भी हमने आपको दिखाया कि ये एक्यूमुलेशन रीजन में ये हमारा काम करता है, और यहाँ पे जो एनालिसिस है इसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि एक्यूमुलेशन रीजन में काम करता है। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, दिस इज MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन सो दैट मोर देन वन ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हमको दिख गया कि दिस टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट विल बी N टाइप, सो दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, and the working of this MOS capacitor is in accumulation regime. So due to that reason, this option D is also the right option. So by this way I can say that the final answer for this question is option B and D. By this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, the DC charge distribution of an ideal MOS capacitor is shown in below figure, full stop. Which of the following are correct? Question mark. Option A, semiconductor as a substrate is P type. Option B, semiconductor as a substrate is N type. Option C, MOS capacitor works in depletion regime. Option D, MOS capacitor works in inversion regime. So now we'll see their detailed analysis and solution. So ये डायग्राम में हमारा आइडियल MOS कैपेसिटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है, और यहाँ पर हमको निकालना है टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, और उसका दूसरा पॉइंट हमको निकालना है इन विच रिजाइम इट इज़ ऑपरेटिंग। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है मेटल के ऊपर चार्ज, ये जो लाइन है, ये जो हमारा बॉक्स है, ये शो कर रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर चार्ज, और ये हमारा शो कर रहा है सेमीकंडक्टर के अंदर अगर कोई डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है तो डिप्लीशन रीजन के अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा ब्लू लाइन से, ये जो ब्लू बॉक्स है उससे हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं, एज पर द गेट वोल्टेज, गेट टू बॉडी voltage applied across this MOS capacitor works into three regime of operation: accumulation regime, depletion regime एंड इन्वर्सन रिजाइम। तो एक्यूमुलेशन रिजाइम में कब काम करता है, जब मेटल के ऊपर जैसा चार्ज का प्रोफाइल दिख रहा है, ये इसी हाइट का, इसी विड्थ का अगर आपको सेमीकंडक्टर के साइड में दिखे विदाउट एनी डिप्लीशन रीजन, तो वो इंडिकेट करता है कि MOS कैपेसिटर हमारा एक्यूमुलेशन रिजाइम में काम कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर मेटल के ऊपर जो चार्ज है, ये चार्ज दिखे, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर के साइड में ये चार्ज, ये जो यहाँ पर येलो बॉक्स दिखा हुआ, ये अगर नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पर डिप्लीशन रीजन वाला बॉक्स रहे, मतलब डिप्लीशन रीजन के अंदर जो चार्ज है वो अगर सिर्फ शो हो, तो इसका मतलब है कि वो डिप्लीशन रिजाइम के अंदर काम करता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि मेटल के ऊपर जैसा चार्ज है तो इसके अपोजिट साइड में, मतलब इसके अपोजिट पार्ट में ये चार्ज हो, जो यहाँ पर येलो बॉक्स से दिखाया गया है, और साथ में हमारे यहाँ पर डिप्लीशन रीजन भी फॉर्म हो रहा हो। तो ये जो हमारा येलो बॉक्स का जो चार्ज है, ये हमारा इन्वर्सन रीजन को शो करता है along with this depletion region। तो अगर इस तरीके का प्रोफाइल रहे on this semiconductor side, if this is having that depletion region along with this kind of charge profile, then that time we can say that this MOS capacitor is working into inversion regime। तो ये हमको इंडिकेट करता है कि MOS कैपेसिटर वर्क्स इन इन्वर्सन रिजाइम। तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा एक सही ऑप्शन मिला। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि मेटल के ऊपर हमारा चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब MOS कैपेसिटर का गेट हमारा VGG पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है, तभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू this body, with respect to this body, this gate voltage is connected to this positive part of this battery। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और एट द सेम टाइम यहाँ पर डिप्लीशन रीजन भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जैसा कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहा है कि डिप्लीशन रीजन में हमारा नेगेटिव चार्ज है, सो दिस कंटेंस ऑफ नेगेटिव आयंस। और आप सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे कि नेगेटिव आयंस हमारा फॉर्म होता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, और पॉजिटिव आयंस फॉर्म होता है हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पर ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन का चार्ज है वो हमारा लोअर साइड में दिखाया गया है, इसका मतलब है इट कंटेन्स ऑफ नेगेटिव आयंस। So this negative ions is formed in this P type of the semiconductor।
तो यहाँ से हमको पता चल गया कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सो दैट इज कॉल्ड एज ए सबस्ट्रेट ऑल्सो. सो दिस इज हैविंग here as a p type, and as per this option A is also the right statement and right option here. तो यहाँ पर सबस्ट्रेट हमको मिल गया p टाइप, और इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि दिस इज द MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन. So that option A and D both are the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider a p-type substrate based MOS capacitor at room temperature having Na is equal to 1 into 10 to the power 13 centimeter raised to minus 3, Ni is equal to 1 into 10 to the power 10 centimeter raised to minus 3, electronic charge Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the relative permittivity of silicon, that is epsilon S, is 11.7 full stop. The magnitude of charge per unit area as a QD in depletion region in nanocoulomb per centimeter square at a strong inversion is, fill in the blanks, and answer should be up to 2 decimal places full stop. So now we'll see the detail of the analysis and solution. So यहाँ पर as per the question हमको निकालना क्या है, magnitude of charge per unit area as a QD in depletion region in terms of nanocoulomb per centimeter square with MOS capacitor working into inversion regime. तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये QD निकालने का फॉर्मूला क्या होगा. सो दिस QD इज इक्वल टू minus QNA into W max, where this Q is the electronic charge and this Na is called acceptor doping and W max is called maximum depletion region. तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा होता तो यहाँ पर एक्सेप्टर टाइप में हमारा यहाँ पर नेगेटिव होता है. सो दिस विल बी माइनस क्यू एन ए इंटू डब्ल्यू मैक्स. यहाँ पर पूछा गया है मैग्नीट्यूड. So due to this reason we need to take this magnitude sign on both the side. तो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया निकालना है. अगर चार्ज सिंपल निकालना होता तो इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करते तो टोटल चार्ज आपको मिल जाता. तो यहाँ पर हमको निकालना है चार्ज डेंसिटी एज लाइक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए इसको लिखते हैं माइनस क्यू एन ए डब्ल्यू मैक्स. अब हमको निकालना क्या है, डब्ल्यू मैक्स, डिप्लीशन रीजन विथ मैक्सिमम. तो हम लोग जानते हैं कि फॉर दिस MOS कैपेसिटर व्हेन दिस इज वर्किंग इनटू इन्वर्सन regime then it is offering the maximum of the depletion region. और आप डायोड में भी पढ़े होंगे कि डिप्लीशन रीजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 एप्सिलॉन बाई क्यू इंटू 1 बाई एन ए इंटू 5s. सो वहाँ पर डायोड के केस में हम लोग लिखते हैं VJ, बट यहाँ पर उसके जगह पर हम लोग लिख रहे हैं 5s. सो दिस 5s इज कॉल्ड एज ए सरफेस पोटेंशियल. और इन्वर्सन रिजाइम में जब काम करता है MOS कैपेसिटर तो उस समय में जो हमारा सरफेस पोटेंशियल होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ फर्मी पोटेंशियल. एंड फॉर दिस पी टाइप ऑफ द सेमी कंडक्टर देयर फर्मी पोटेंशियल वी कैन फाइंड आउट 5f इज इक्वल टू VT इंटू ln Na बाई Ni. तो यहाँ पर जब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर VT का वैल्यू मेंशन नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर हमको पता है. तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे VT का वैल्यू क्या होता है, KT बाई क्यू इज इक्वल टू 0.0259 वोल्ट. तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.0259 वोल्ट इंटू ln. यहाँ पर Na का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर 13. सो दिस वी कैन राइट इट हियर एज ए 10 टू द पावर 13 डिवाइड बाई Ni का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 10. सो यहाँ पर इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.178 वोल्ट. कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली कीजिएगा. ये ln है, यहाँ पर लॉग लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा. इसलिए जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ln को आपको यूज़ करना है टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है W मैक्स, मतलब मैक्सिमम डिप्लीशन विड्थ. तो इसका फार्मूला यहाँ पे ये होता है 5s के जगह पर 2/5f आपको सब्स्टिट्यूट करना है और सारे वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करना है. सो हेयर बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी कैन राइट इट हेयर W max is equal to रूट ओवर ये एप्सिलन, ये जो एप्सिलन है दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी. सो दिस एप्सिलन इज इक्वल टू एप्सिलन एस इंटू एप्सिलन नॉट होता है. ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर यहाँ पर दिया हुआ 11.7 और एप्सिलन नॉट का वैल्यू आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना. सो दिस इज कॉल्ड
परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इसका यहाँ पर यूनिट होता है, नॉर्मल यूनिट होता है फैराड मीटर में, बट आपको यहाँ पर यूज़ करना है फैराड सेंटीमीटर में। तो अब हम लोग सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2 इंटू दिस एप्सिलॉन एस इज 11.7, सो वी कैन राइट इट हियर 11.7। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मेंशन नहीं है, आपको याद रखना है। सो दिस वैल्यू इज 8.85 into 10 to the power minus 14 in terms of farad per centimeter square. Divide by Q is the electronic charge. So this is here 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1 by Na. So यहाँ पर Na का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 13 into यहाँ पर phi s के जगह पर 2 phi f हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। दिस phi s शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ट्वाइस ऑफ phi f। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 phi f हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.178। जब आप इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे केयरफुली, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारा वैल्यू बड़ा बड़ा है, या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा है, तो इसलिए आप इस नंबर्स को, इस वैल्यूज़ को अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर स्क्वायर रूट भी इसका लेना है, ये भूलिएगा मत। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? So this value will become here as a 6.78 into 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर ये हमको W मैक्स का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे इस W मैक्स के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी नीड टू फाइंड आउट देयर मैग्नीट्यूड। सो दिस इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू Na का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 13 इंटू यहाँ से जो हमने ये वैल्यू निकाला है 6.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा? सो दिस विल बिकम हेयर एज 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है यहाँ पर नैनो कूलम के फॉर्म में। सो दिस नैनो कूलम मीन्स वी कैन राइट इट हेयर एज 1.08 नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कहाँ कहाँ मिस्टेक होने का चांस है, ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप फैराड मीटर में डालेंगे, एज लाइक उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर, अगर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गलत होगा, एक चांसेस वहाँ पे बनता है। सो वहाँ पर ये सारी चीज़ को आप केयर करेंगे। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 9, तो यहाँ पर इसके बदले में नैनो हम लोग लिखते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं दिया रहेगा तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में डिप्लीशन रीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे, तो उस समय में हो जाएगा माइनस 1.08। तो ये सारे पॉइंट्स को ईडीसी में केयर करना होता है, तो आपका आंसर सही निकल करके आएगा। मैग्नीट्यूड पूछेगा मतलब कोई साइन नहीं, सिर्फ हमको पॉजिटिव साइन लेना है। यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड नहीं रहता तो Na का वैल्यू माइनस में आता। ये सारे चीज़ को आप केयर करेंगे। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज एज एनी टी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज एज लाइक वी गॉट इट हेयर, दिस QD इज इक्वल टू 1.08 नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज विल बी 1.08, क्योंकि यहाँ पर इसके यूनिट ऑलरेडी मेंशन है। So that final answer for this question is 1.08, and by this way this is the end of the explanation for this question.